Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine. Let's see, in this video I am going to talk about that what is letter writing. When we want to convey a message from one place to another place, we have to write something. And if we want to write something, we must have a formal pattern that is called letter writing. When one friend writes something to his friend, this is called the informal letter writing. When one institution writes something to another institution, this is called the formal letter writing. And in this lecture, I am going to tell you that a universal pattern that you must follow when you want to write a letter. Basically, there are 4 parts of letter writing. When we write letter, we must keep in mind the 4 parts of letter. Let's see what are the 4 parts. Number 1, when you write letter, like you are writing a letter, where you are sitting, you must mention the particular name of the place where you are sitting and you are writing a letter. This is the very first point that you must notice. Students often say that in their letter they write examination hall. Why they write examination hall on the top of the letter? Because when they are writing a letter, they are sitting in the examination hall. So this is the requirement for the students that they must write examination hall at the top of the letter, because this is the place where they are writing the letter. The second point is the city, mean the area, the states, the province, the city where they are writing on letter. And in normal, when you write a letter in examination hall, you write city A, B, C, something like that. And then the very important thing, the writing of date. When you write a date, and after that you have to write the date. Then in the date we have the 3 things. 1, the month. Second, the date of the month. The third is the year. See, this is the month and this is the particular date of this month and this is the year. When you write months and you have to write the date of that particular month, and then you will write the 2021, 22, 20, etc. You have to separate date from the year. For separating the date from the year, you must put comma at this place. And when you stop something, whatever you are writing in your notebook, in your paper, in your books, wherever you are writing, you have to put the full stop. Full stop indicates that you have finished that particular sentence. So when you finish that sentence, you must put the full stop at that particular place. And then third process is the salutation process. This is the normally called that when we say something Assalamu alaikum. This is the salutation process. We मुखातिब something. जब हम किसी को मुखातिब करते हैं तो हम उसकी ज़ुबान में, उसके कल्चर में उसका नाम लेते हैं. तो जब हम इंग्लिश में मुखातिब कर रहे हैं तो हमें फिर उसका नाम लेना चाहिए जिसको मुखातिब कर रहे हैं. जैसे कि माय डियर फ्रेंड. अगर यहाँ पे कोई और है, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, माय डियर फादर, माय डियर आंट, माय डियर अंकल या डियर अंकल. दिस इज द सैल्यूटेशन प्रोसेस कि हम जिसको हाथ लिख रहे हैं उसको मुखातिब कर रहे हैं. और यहाँ पर इसके बाद हमने फिर कॉमा लगाना है. और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने ये वर्ड लिखने हैं, मुखातिब करना है, अगर तो ये 3 लफ्ज लिखे हुए हैं तो फिर आपने क्या करना है, पहले वाला जो वर्ड है उसका पहला एलिमेंट होगा वो लिखना है कैपिटल, जो लास्ट वाला है उसका पहला लिखना है आपने कैपिटल.
और अगर टू वर्ड है, लेट्स से अगर आपने लिखा माय डियर फ्रेंड लिख दिया, तो फिर क्या करोगे, पहले वाला जो अल्फाबेट है, पहले वाला लेटर वर्ड का, उसको लिखोगे कैपिटल, दूसरे को लिखोगे कैपिटल। और अगर आपके पास 3 से ज्यादा अल्फाबेट है तो फिर क्या करोगे, ये फर्स्ट वाला है ना वर्ड हमारा, इसका होगा कैपिटल, और जो एंड पे होगा इसका फर्स्ट वाला होगा कैपिटल वर्ड होगा। देखो ध्यान, मैंने कैपिटल नहीं किया होगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये लिखने वाला। अगर आप फुल नंबर लेना चाहते हो अपने एग्जाम में तो क्या करना चाहिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। और दूसरी जो सबसे अहम बात वो ये है कि जब आपने यहाँ कॉमा पुट कर दिया तो फिर आपने यहाँ से लिखना जो है वो राइट करना स्टार्ट करना है। और फिर अब जब आप खत्म करोगे यहाँ पे तो फिर आपने नीचे लिखना है योर सिंसियरली लिख लें, योर अफेक्शनेटली लिख लें, योर लविंग सन लिख लें, योर फ्रेंड लिख लें, योर लविंग फ्रेंड लिख लें, जो आप चाहते हैं वो आप इसके नीचे लिख सकते हैं। और सबसे अहम बात जो ये है कि जब आपने लिखना है योर्स तो उसके ऊपर आपने कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने ऊपर कॉमा नहीं लगाया, वो आपने उसके ऊपर कॉमा नहीं लगाना। और जब आप लिखेंगे इस पर आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद उसी तरह अपना नाम आपने नहीं लिखना, आपने x.y.z आपने लिखना है। तो ये है जो आपका लेटर का तरीका कार के कैसे हम लेटर को लिखना है। अब अगर इसको समझ आएगा, अब देखिए ये जो प्रोसेस, ये जो ऊपर लिखा हुआ है हमने, ये क्या है, बेसिकली ये है एड्रेस, कि जहां पर बैठ के उस किसी बंदे को खत लिख रहे हैं। जब एक बच्चा इम्तिहान दे रहा होता है तो वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता है, उसको किसी जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होगा तो वो कोई ना किसी सिटी में वाक़या होगा, ठीक है, उसमें कोई ना कोई सिटी में उस दिन कोई ना कोई दिन होगा, पर्टिकुलर दिन। तो ये 3 चीज़ें अंदाज में उसको लिखनी पड़ेंगी एड्रेस में। तो एड्रेस में ये आपको 3 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। नंबर 1 कि उसका जो रैंक है जहाँ बैठे हुए वो, उसके बाद जो सिटी जो पर्टिकुलर नाम है आपने वो लिखना है, उसके बाद आपने डेट लिखनी है। तो ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं आपके एड्रेस में लिखने के लिए। दूसरा प्रोसेस है सैल्यूटेशन। अब ये क्या है कि ग्रीटिंग रिमार्क्स, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। जब किसी को मुखातब कर रहे हो तो डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, तो ये सारे हैं ग्रीटिंग रिमार्क्स आ रहे हैं, ये आप लिखते हो कोई भी अपने हिसाब से या उस बंदे के हिसाब से। अगर मदर है तो उसके हिसाब से, फादर है तो उसके लिहाज से, फ्रेंड है तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा है मेन बॉडी आपके। अब ये क्या है, बेसिकली ये कंटेंट है लेटर का। अब कंटेंट क्या है कि आप उसमें लिखना क्या चाहते हो, कि आप उसको अपने दोस्त को अपनी स्टडी के बारे में बता रहे हो या स्कूल के बारे में बता रहे हो, आपका कंटेंट क्या है। ये आप अपनी अम्मी को अपनी पढ़ाई के बारे में बता रहे हो, या आप किसी की तज़कियत कर रहे हो, या आप किसी दोस्त से कुछ चीज़ उधार मांग रहे हो, तो ये है आपका कंटेंट। लेटर का ये आपका है कंटेंट, ठीक है। और थर्ड पे आ गया क्लोजिंग, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, उस रैंक के मुताबिक लिखना है आपने, कि जो मुखातिब किया था उसके लिहाज से लिखना है। जैसे कि योर सिंसियरली लिख सकते हैं, योर लविंग फ्रेंड लिख सकते हैं, योर अफेक्शनेटली लिख सकते हैं, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कि लेटर राइटिंग का बेसिक प्रोसेस जो है वो क्या है। अब जो पॉइंट्स है वो ये है, जो इन शॉर्ट पॉइंट आप बताने वाला वो सिर्फ ये है, जब आप कोई सेंटेंस भी लिखते हो तो आप उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाते हो। जब आप उस टाइम पे फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, इसका मतलब क्या है कि वो सेंटेंस अभी आगे चल रहा है। सेम द केस इसी तरह है कि इन सब के एंड पे जो जो हमने लिखा होगा इसके एंड पे यहाँ कॉमा या फुल स्टॉप जो रिक्वायरमेंट है वो आपने लगाना ही लगाना है, कि इस बात को शो करेगा कि आपने यहाँ पर इसको स्टॉप किया है। अब कॉमा का भी मतलब है कि स्टॉप करना, मगर कॉमा हल्का स्टॉप है। थोड़े से लिए कॉमा का मतलब है कि जब थोड़े से लिए हमें पॉज लेना होता है फिर हम वहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अगर ज़्यादा टाइम के लिए हमने पॉज लेना होता है फिर हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट लिखने के लिए, लिखने की लेटर राइटिंग हमने आज पढ़ी है, वो कौन कौन सी है, कि बेसिकली 4 जो है हमारे पास लेटर के पार्ट हैं, ठीक है। अब अगर आप लेटर याद कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आपको ये सारा पैटर्न आपको बन गया, आपने इस तरीके से लिख लेना है। अब आपने करना क्या है, सिर्फ आपका फोकस है कंटेंट के ऊपर। जो कंटेंट हो वो आप लर्न करोगे, इसके अंदर फिट करोगे, आपका वो लेटर बन जाएगा, ठीक है। अब देखें इसके सेपरेट मार्क्स हैं आपके एग्जाम में, इसके सेपरेट और इसके सेपरेट आपके मार्क्स हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर आपको ये लिखना आता होगा, ये लिखना आता होगा प्रॉपर, ये डेट वगैरह लिखना आता होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपको नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं, बशर्ते के
आपने कंटेंट रेलिवेंट उसमें डाला होगा तो फिर ठीक है। तो ये था ये आज के हमारे लेटर का राइट पैटर्न क्या है। इस तरीके से आपने अपना लेटर जो है वो बनाना है। जब आप नोटबुक के ऊपर लिखेंगे तो आप इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम तक जो है आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो जाए, आपको कंप्लीट लर्न हो जाए कि ये सारा पैटर्न में इस तरीके से बनाना है। थैंक यू।